Hello everyone, welcome to unit number 12, aldehydes, ketones and carboxylic acids. As we know that at presently we are working on a NCERT exemplar. In last sessions we completed the MCQs having only one options, and today we start with such a type of questions is a multiple choice questions, means having a more than one correct answer or more than one options. Okay, let us start. Question number 13. Which of the following compounds do not undergo aldol condensation? We know that in the case of aldol condensation, your compound must having a alpha hydrogen. But we know that at least one alpha hydrogen undergoes the reactions in presence of dilute NaOH, okay, or sometimes barium hydroxide or Na2CO3 or this type of the solutions which can be used, and it's converted into beta hydroxyaldehyde or beta hydroxyketones respectively, okay. So in the case of this CH3CHO, there is a presence of alpha carbon as well as alpha hydrogen. So this compound definitely gives a aldol condensation. Here the benzaldehyde having a alpha carbon, but there is an absence of alpha hydrogen. So this compound does not undergo aldol condensation. So our first answer is B. In the case of acetone, your carbonyl carbon adjacent alpha carbon having a 6 different alpha hydrogen. So definitely they also gives a aldol condensation. But in this case, your CHO connected carbon is alpha carbon. This alpha carbon does not have a hydrogen. So it does not give or undergo aldol condensation. So our answer is B and D. Fine. Okay. So in question number 14, they ask the treatment of compound PHO C double bond O PH means phenyl benzoate with NaOH solutions yields what? So we know that the treatment of compound, because here the PHO C double bond O PH, so hydrolysis of NaOH with the help of this NaOH, so the H is connected with PHO and remaining ON is connected with a PHC double bond O. So we get a product is phenol and sodium benzoate. So our first product is sodium benzoate. But we know this phenol is acidic in nature. So definitely it reacts with a sodium hydroxide and it's converted into sodium phenoxide. So two different products or two different yields that we have to get is a sodium benzoate and sodium phenoxide. Next one, question number 15. Which of the following conversions can be carried out by Clemmensen reduction process? So we know that in the case of Clemmensen reduction, definitely where carbonyl group is converted into methylene group. So in the case of benzaldehyde, but benzaldehyde is converted into toluene, not in benzyl alcohol. So A is wrong. Cyclohexanone to cyclohexanone. Yes, definitely your cyclohexanone compound C double bond is converted into CH2. Benzoyl chloride into benzaldehyde is not correct, right? Because benzoyl chloride is not aldehyde as well as ketone. In the case of benzophenone, so definitely benzophenone C double bond O group is converted into CH2, so it's diphenyl methane that we have to get. So which of the following? So our answer is B and D in question number 15. Okay, next question is 16. Through which the following reactions number of carbon atoms can be increased in the chain? मीन्स यहाँ पे हमें ये देखना है कि कार्बन की जो हम एंड प्रोडक्ट में यानी असेंडिंग ऑर्डर होता है कार्बन बढ़ने का, तो ग्रिग्नाइट में तो बढ़ेगा ही क्योंकि ग्रिग्नाइट रिएजेंट इटसेल्फ कनेक्टिंग हैविंग RMgX, तो मिनिमम एक तो बढ़ाएगा. केनिज़ारो में देयर इज नो डिफरेंस, क्योंकि केनिज़ारो रिएक्शंस है वो तो इसमें कोई भी कार्बन की इंक्रीज और डिक्रीज कुछ भी नहीं हो पा रहा है. So aldol condensation definitely, okay, they change some type of the reactions and increase the carbon number. And HVZ reaction, so in HVZ reaction is a Hell Vollard Zaleski, तो इसमें भी कुछ भी हो नहीं पा रहा है. So A और C is our answer. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बेंजोफिनॉन है, right? So benzophenone can be obtained by what? So benzophenone can be obtained by, so हमें benzophenone बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो बेंजोइल क्लोराइड की बेंजीन के साथ एनहाइड्रस AlCl3 यानी वो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से हम करेंगे तो भी बेंजोफिनोन बनेगा. और दूसरा हमारे पास 2 मोल ऑफ बेंजोइल क्लोराइड है. व्हेन इट्स रिएक्ट्स विथ C6H5 twice CD in dry ether, so it gives a benzo
It gives a benzophenone and CdCl2. So 2 mole of benzophenone and CdCl2 that we have to get. So benzophenone can be obtained with the help of such a type of the compound. Okay. Next one, number 18. यहाँ पे क्या दिया गया है? नंबर 18 में आप देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. नंबर 18, which of the following is correct representation for the intermediate of nucleophilic addition reactions to the given carbonyl compound? यहाँ पे आप देखिए, ये कौन सा कंपाउंड हमें यहाँ पे दिया गया है. ये कार्बन है, इसके साथ ए भी अलग है, बी भी अलग है और ओ है. अभी हम कोई न्यूक्लियोफिल का अटैक कराएंगे तो ऊपर से और नीचे से दोनों तरह से अटैक हो सकता है. देखिए, जैसे यहां से मैं अटैक कर रहा हूं न्यूक्लियोफाइल का, तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर हो जाएगा ना. ए है, वो पीछे है, बी आगे है, न्यूक्लियोफाइल सेम प्लेन में है और ये भी सेम प्लेन में है. अगर मैं इसका जो अटैक है वो नीचे से कराऊंगा तो उसका भी अलग स्ट्रक्चर्स मुझे मिलेगा. तो वो क्या हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं, ये जो प्लेनर स्ट्रक्चर्स में मैंने यहाँ पे आपको जो दिखाया है, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर भी हो सकता है ना. देखिए, न्यूक्लियोफाइल का तो अटैक हो रहा है, राइट. यहाँ पे भी O माइनस बी भी है, O माइनस बी है, लेकिन ऐसा भी कुछ हो सकता है ना, यहाँ पे A है, वो नीचे चला जाएगा और B ऊपर चला जाएगा. क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इन दिस कंपाउंड योर नाउ कार्बन बिकम ऑप्टिकल आइसोमर. क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है वो उसमें कीराल कार्बन होने की वजह से अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल कैन अकर आइदर फ्रॉम द टॉप और द बॉटम फेस गिविंग एनेंशियोमेरिक प्रोडक्ट्स. सो दो जो प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, ए और बी, बोथ आर करेक्ट. तो मेरा आंसर ए और बी दोनों आ गया है. बढ़िया क्वेश्चन है. मैंने आपको पहले भी बोला था कि हमें ये सब कुछ देखना पड़ेगा. नेक्स्ट है मेरा वाई इज द, अभी शॉर्ट आंसर की तरफ हम चले जा रहे हैं. वाई इज देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ब्यूटेनॉल एंड ब्यूटेनॉल. देखिए, हमें मालूम है कि इन द केस ऑफ butanol, right, boiling points of aldehydes are lower than those of the alcohol of the similar molecular mass or average means near about molecular mass. क्यों, इसका क्यों रीजन क्या है? Because in alcohol there is a hydrogen bond or intermolecular hydrogen bond in butanol, while in the case of aldehyde they having a they does not having a hydrogen bonding. Instead of it's only having a weak dipole interactions. देखिए, अल्कोहल है ना, इसमें दो अल्कोहल के मोलेक्यूल के बीच में वान डेर वाल्स बॉन्ड भी होता है, डाइपोल अट्रैक्शन भी होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है. तो मुझे तीनों उसके ब्रेक करने पड़ेंगे. सो इट्स रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, सो द बॉइलिंग पॉइंट इज हायर. While in the case of butanol, तो ब्यूटेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड के सिवाय दोनों है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो एनर्जी वो काफी ज्यादा होती है. That's why this is the reason that the large difference in the boiling points of butanol and butanol. Next हमें क्या दिया गया है? Write a test to differentiate between two pentanone and means pentane 2-on and pentane 3-on. So we know that pentane 2-on है, जो मेरे पास pentane 2-on दिया गया है, they having a methyl ketone group means COCH3 group. जो भी जिसके पास भी CH होता है तो वो hence undergoes iodoform test or treatment with iodine in presence of NaOH, which gives a yellow precipitates of iodoform. But in contrast, where we have a pentane 3-on, so in the case they do not have a methyl ketone group. यहाँ पे C डबल बॉन्डों के साथ इथाइल जुड़ा हुआ है, मिथाइल जुड़ा हुआ नहीं है. Okay, so hence does not give a yellow precipitates of iodoform on treatment with iodine and NaOH. ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट मुझे दिया गया है गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स. बिल्कुल इजी है, हमें पता ही है. यहां से हम नंबर शुरू करेंगे 1 2 3. तो क्या होगा? 3 फिनाइल prop 2-इन 1 आल. यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, मैं यहाँ रेक्टिफाई कर देता हूँ. ओके, नेक्स्ट नंबर 2 एकदम इजी है. साइक्लोहेक्सेन तो है ही और कार्बाल्डिहाइड जुड़े हुए हैं. नेक्स्ट वन हम सी में बात करेंगे, तीसरे वाले में. तो हम यहां से देख सकते हैं 1 2 3 4 5. सो इट्स 3 ऑक्सो पेंटेनॉल है, 3 ऑक्सो पेंटेनॉल और 3 ऑक्सो पेंटेन 1 आल भी हम बोल सकते हैं. नेक्स्ट वन डी है, सेम नंबर गिवन फ्रॉम CHO2 ऑनवर्ड्स राइट टू लेफ्ट. सो ब्यूट 2-इन, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, ये ई चला जाएगा. ब्यूट 2-इन 1 आल. ओके,
नेक्स्ट हमें दिया गया है गिव द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। सो फर्स्ट दे गिव द 4 नाइट्रो प्रोपियोफिनोन। तो हमें मालूम है पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बेंजीन रिंग है, फिर फिनोन में नाइट्रो, पेरा पे नाइट्रो डाल दीजिए और नाइट्रो प्रोपियोफिनोन है यानी 3 कार्बन का जो ग्रुप है वो हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट मुझे दिया गया है 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बाल्डिहाइड है, एकदम इजी है। आपको पहले साइक्लोपेंटेन ड्रॉ करना है, सेकंड पोजीशन पे OH और फर्स्ट पोजीशन पे CHO है। Phenyl acetaldehyde, तो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द phenyl ring and then we have to draw the acetaldehyde means CH2CHO। नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया गया है जो 23rd नंबर का हमारा जो आंसर्स है, तो हम क्या दिखा सकते हैं कि राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें CHO है तो हमें मालूम है इथेन 1,2 डायल ही होगा। यहाँ पे देखिए बेंजीन है राइट, और 1,4 पे 2 कार्बाल्डिहाइड है, 1,4 डाई कार्बाल्डिहाइड हो सकता है। हमें मालूम है ना इसका जो पेट नेम कॉमन नेम क्या है उसका, ग्लायोक्सल, इसका टॉरथेलाल्डिहाइड है राइट। यहाँ पे देखिए यहाँ से मुझे नंबर देना पड़ेगा फ्रॉम 1 to 3, 1 to 3, सो 3 ब्रोमो बेंजाल्डिहाइड हम दिखा सकते हैं, 3 ब्रोमो बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, अभी हम 24th नंबर में हम जाना चाहते हैं। 24th नंबर हमें यहाँ पे दिया गया है बेंजाल्डिहाइड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेंजाइल क्लोराइड, राइट द रिएक्शंस फॉर ऑब्टेनिंग बेंजाइल क्लोराइड एंड देन बेंजाल्डिहाइड फ्रॉम इन। तो हमें मालूम है कि व्हेन टोल्यूइन इज रिएक्टेड विद 2 mole of Cl2 in presence of sunlight and near about 111 degree centigrade temperature, this reaction is a side chain halogenation or here side chain chlorination. So first we get a benzyl dichloride, and with the help of this benzyl dichloride, when it's react with a dilute NaOH, so it's a one type of hydrolysis, right? So here there is a displacement of Cl with a OH, but हमें मालूम है एक कार्बन पे 2 OH, यानी जेमिनल अल्कोहल हो नहीं सकता है क्योंकि इसमें से पानी निकल जाएगा और हमें बेंजाल्डिहाइड प्रोडक्ट यहाँ पे मिल सकता है। तो ये जो रिएक्शन है यहाँ पे बताया हुआ है। फिर हमें यहाँ पे 25 नंबर में दिया गया है नेम द इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस इन द रिएक्शंस ऑफ बेंजीन विथ बेंजाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, सो द नेम द रिएक्शंस ऑल्सो। तो बिल्कुल एकदम इजी है, मेरे पास यहाँ पे बेंजोइल क्लोराइड दिया हुआ है, हमें मालूम है ये डेल्टा प्लस है और ये डेल्टा माइनस है। AlCl3 हमेरा जो यहाँ पे दिया है हमें मालूम है वो लुईस एसिड है। सो ये जो C डबल बॉन्ड O है और Cl है तो ये इसके साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो पहले क्या बेंजोलिनियम केटाइन बनाएगा और ये बेंजोलिनियम केटाइन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं C डबल बॉन्ड O है। ठीक है, तो वो बेंजोलिनियम केटाइन अभी बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे प्रोसेस कर से बेंजोफिनोन, एंड दिस रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शंस। तो ये बढ़िया एग्जांपल्स है फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन का। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया गया है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स इन्वॉल्व CC बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, जो कीटोन का ऑक्सीडेशन है वो कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड है उसके क्लीवेज के लिए हमें दिखाया गया है। सो नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ऑन ऑक्सीडेशंस ऑफ 2,5-dimethyl हेक्सेन 3 ऑन। देखिए अभी जो इसका रिएक्शन है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए दिस इज 2,5-dimethyl हेक्सेन 3 ऑन। बहुत अच्छी तरह से देखेंगे तो हमें मालूम है कि ये असिमेट्रिक है। देखिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड के ये पास में ग्रुप अलग है, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप यहाँ पे लगाया हुआ है, यानी असिमेट्रिक है। ठीक है, सो बीइंग एन अनसिमेट्रिकल कीटोन ऑक्सीडेशंस ऑन द आइदर साइड ऑफ द C डबल बॉन्ड O, यहाँ से भी क्लीवेज हो सकता है, यहाँ से भी क्लीवेज हो सकता है। सो इट्स गिविंग अ मिक्सचर ऑफ, क्या होगा मुझे मिक्सचर में क्या मिलेगा, तो मिक्सचर यहाँ पे ये भी हो सकता है ना, यहाँ पे मुझे ऐसा मिल सकता है। यहाँ पे आपको थोड़ा बुक में आपको यहाँ पे दिक्कत आ रही है, C3-methyl ब्यूटेनोइक एसिड यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए उसने क्या किया है CH3CH2। ठीक है, ये पोर्शन इसमें चला जाए तो COOH हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है ना, यहाँ पे दिखाया नहीं है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं CH3 CH3 COOH भी मुझे मिक्सचर मिल सकता है। इसको हम क्या बोलेंगे 2-methyl
प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। एक का मुझे 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड मिल रहा है, एक का मुझे 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड मिल रहा है, ठीक है, फाइन। और तीसरा मुझे क्या मिलेगा, एसीटोन भी मिलेगा, इसने यहाँ पे बताया हुआ है। और ये जो एसीटोन है, सिंपली एसीटोन, उसका भी फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है ना, इसका भी हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, तो इसमें हम CH3COOH और फॉर्मिक एसिड मिलेगा, लेकिन ये फॉर्मिक एसिड भी आगे ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू व्हाट, CO2 और H2O, ठीक है। सो बीइंग एन अनसिमेट्रिकल कीटोन, oxidations occurs on either side of the C double bond O group, giving a mixture of 2 methyl propanoic acid and 3 methyl butanoic acid and propane 2-on. And propane 2-on further oxidations gives a mixture of ethanoic acid and methanoic acid, but the subsequent oxidations of this formic acid gives CO2 and H2O. तो थोड़ा उसमें जो प्रिंटिंग मिस्टेक था तो मैंने यहाँ पे दिखाया है, मैं अभी आपको जो फोटो शेयर करूंगा तो इसमें भी ये पोर्शंस यहाँ पे आ जाएगा। अभी हम 27th नंबर में चले जाते हैं। 27th नंबर हमें क्या दिया गया है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ की जो हमें है, और गिव द रीजन फॉर योर आंसर। अब देखिए यहां पे क्या दिया गया है, हमें फ्लोरीन दिया गया है। हमें मालूम है फ्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट बढ़िया होता है, क्लोरीन का भी इंडक्टिव इफेक्ट बढ़िया होता है, C6H5 का भी इंडक्टिव इफेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे ये जो इफेक्ट हम दिखा रहे हैं ना, वो क्या है, वीक है। इसका क्या है, स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू, बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फ्लोरीन इज कंपेयर टू द क्लोरीन इज हायर इन नेचर, सो इसका माइनस इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज्यादा हो गया है। यहाँ पे मिथाइल है तो ये प्लस इंडक्टिव इफेक्ट से चल रहा है, और इसमें तो कुछ भी है ही नहीं, तो इसकी तो एसिडिटी ही हमें मालूम नहीं पड़ेगी। हमें मालूम है ना अल्कोहल में देयर इज नो अल्कोक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे there is a resonating structure in acetate ion, so these resonance phenomena stabilize the acetate ion, so that's why the reason behind the carboxylic acid is compared to the more acidic than alcohol compounds, okay। तो ये जो पोर्शंस है हमें अभी आपको ये उसने बताया है कि गिव द रीजन फॉर योर आंसर्स, तो मैं अपनी तरह से इसे बोल सकता हूं कि माइनस इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन, minus inductive effect of fluorine is much stronger than chlorine. So fluoroacetic acid is a stronger acid than chloroacetic acid. Okay. Further, C6H5 group having a weak inductive effect, but though much weaker than fluorine and chlorine. So therefore, this C6H5CH2COOH is a stronger acid than COOH. Right? Why? Because but weaker than fluoro and chloro. Now CH3COOH is much stronger acid than ethanol, because in the case of CH3COOH, the acetate ion left after the loss of proton is stabilized by resonance, but no such a type of stabilization is possible in the case of this ethoxide ion, means loss after a proton. So the overall acidic strength decreasing the order of this. Okay, fine. Next, number 28. What product will be formed on reactions of propanal with 2-methyl propanal in presence of NaOH? What products will be formed, and write the name of the reactions also. देखिए यहाँ पे जो प्रोपेनॉल देख रहे हैं तो उसके पास अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन है, सेम वे यहाँ पे भी आप देख रहे हैं यहाँ अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन है। So when it reacts with a dilute NaOH, तो हमें मालूम है ये क्रॉस आल्डोल में चला जाएगा, क्रॉस आल्डोल कंडेंसेशन में चला जाएगा। तो क्रॉस आल्डोल में हमें 4 प्रोडक्ट मिल सकती है, 2 सेल्फ के से मिल सकती है और 2 क्रॉस से मिल सकती है, ठीक है। अब देखिए हमें अब और सभी में बीटा हाइड्रोक्सी तो आएगा ही। जैसे मेरे को एक प्रोडक्ट मिल रही है यहाँ पे, देखिए मुझे मिल रहा है ये प्रोडक्ट है, देखिए 3 हाइड्रोक्सी 2,2 डाइमिथाइल पेंटेनॉल। ये किस मैं अपनी तरह से यहाँ पे समझा रहा हूं। इसमें क्या होगा कि ये प्रोपेनॉल है ना, इसमें जो देखिए आप यह जो प्रोपेनॉल है वो इलेक्ट्रोफाइल हो रहा है, और जो ये 2-मिथाइल प्रोपेनॉल है राइट, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, यानी इसका इनोलेट इसके घर में अटैक करेगा तो ये मुझे प्रोडक्ट मिल जाएगा। और ये मैंने दिखाया है वो क्रॉस से दिखाया है, यस ये क्रॉस आल्डोल से बना हुआ है, क्रॉस आल्डोल से बना हुआ है, ठीक है।
दूसरा मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, और मुझे एक और मिल सकता है, उसका नाम है 3 हाइड्रोक्सी 2,4 डाइमिथाइल पेंटेनॉल। ये भी मुझे क्रॉस से ही मिला हुआ है, देखिए ये भी मुझे क्रॉस से ही मिला हुआ है, लेकिन उसमें क्या होगा, ये प्रोपेनॉल है ना, प्रोपेनॉल वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, और ये जो 2 मिथाइल है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब देखिए अपनी तरह से प्रैक्टिस भी कीजिए। फिर क्या मिल सकता है मुझे, राइट? Besides cross aldol condensation, each aldehyde can also undergo self or simple aldol condensation and giving 2 self or simple aldol products too। तो एक में मुझे मिलेगा 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनॉल। वो किस तरह से हुआ, प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉल के बीच में जो रिएक्शंस हुआ है तो वो सेल्फ से हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, तो कि अभी 2 मिथाइल प्रोपेनॉल है, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल और 2 मिथाइल प्रोपेनॉल वो सेल्फ से क्या बनाएगा, 3 हाइड्रोक्सी 2,2,4, यहाँ पे ट्राई आएगा ना, 2,2,4 है, ट्राई मिथाइल पेंटेनॉल बना देगा। आप अपनी तरह से ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम 29th नंबर की बात कर रहे हैं। कंपाउंड ए was prepared by oxidation of compound B with alkaline KMnO4. Compound A on reductions by lithium aluminum hydride gets converted back to compound B. When compound A is heated with compound B in presence of H2SO4, it produces fruity smell of compound C. Fruity smell तो हमें एस्टर की मिल सकती है। To which family the compounds A, B and C belongs to? देखिए यहाँ पे हमें दिखाया गया है अल्कोहल है, मैं आपको एक रिएक्शंस के साथ समझाना चाहता हूँ। दिस इज RCH2OH, दिस इज अल्कोहल। When this alcohol oxidize with the help of KMnO4, so it's converted into what? RCOOH। ठीक है, तो ये मुझे कंपाउंड यहाँ पे RCOOH मुझे मिल गया है। अभी दूसरा यहाँ पे देखिए, मैं इसको इस तरह से भी दिखा सकता हूँ, दिस RCOOH when it reacts with alcohol compound B, so there is a removal of water, in presence of H2SO4, esterification or Fischer-Tropsch esterification. It's a reversible reaction and we get the product is like that, RC double bond OR. It's an ester compound and having a fruity smell. So A is carboxylic acid, B is alcohol and C is an ester। यहाँ पे समझ में आ गया? ओके, अभी मैं 30th नंबर का क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीज ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ एंड गिव एक्सप्लेनेशन फॉर द अरेंजमेंट। बिल्कुल सही है, एकदम इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द नाइट्रोजन एटम ऑफ नाइट्रो ग्रुप, सो देयर इज अ वेरी गुड माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, सो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप इज मच स्ट्रॉन्गर देन द फ्लोरीन। So it means that this acid is a stronger acid than fluoroacetic acid. But C6H5 group on other hand is having a minus inductive effect. All are having a minus, but it's a strong. Then it's a decreasing order of the minus inductive effect. Okay, so both fluoro and this nitro. So overall acidic strength is decreasing in order, like nitro to fluoro to C6H5. ओके, तो आप आज हम यहीं पे रोकेंगे। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा तो हम 31 से हमारी जो जर्नी है वो हम आगे बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।